So this panel is called Towards the Countercultural Aesthetics, Community Engagement in the Arts. We have as joining us as moderator Sanchayan Ghosh and the panelists Ashok Lote, Anuradha, Rohit Kumar and Sanchayan. So I will hand over to the speakers, but first I will just introduce the moderator. Sanchayan is a visual artist pedagogue working as associate professor in the Department of Painting at Kala Bhavan, Vishwabharati Shantiniketan. He is interested in research-based site-specific art practice as a collaborative dialogue with multiple communities leading to interdisciplinary conversations between land, labor, and collective memory of process and practice. I will now hand over to Sanchayan and the panelists to take it over from here. Thank you. Good afternoon, everybody, and very welcome to all of you for this session, which is kind of a post-lunch session. And I think the area on which we are going to discuss today is about coming together, being together in a certain method of working and making in a shared space, which constitutes a certain kind of a community identity. But to initiate with the whole discussion, although I am part of a panel, but I will more operate as a moderator and then go into listen to all of you and come back to the conversations later on. So just to introduce this session, I thought that it would be interesting to address the title of the topic in which it has been framed, community engagement and the arts. And as a title itself, I think it situates these two contexts as a kind of a separate situation, which I would like to engage with as a kind of a initiation of this conversation, that what we mean by art as a practice and what kind of art practices we are talking about, and then what we mean by community engagement. And are they two separate entities in the process of engaging in the public situation, or there are certain ways in which these two entities, encounter each other, or are there any differences as such in the way in which they perform or they function in the contemporary times? And in that context, I think there is one very important notion that needs to be identified, is that what do we mean by community and how do we constitute the configuration of what is a community. And many of the times when we look at this notion, we often identify it traditionally with certain group of people with a certain continued sustained knowledge system and a certain spatiality. We associate the notion of a community with more with those kind of contexts. Also within the larger hierarchy of caste and the structure of our economic systems, often we identify community in those kind of categorizations and segments. But again, community also, in a more coming out of that traditional sense of the community can also be this kind of a gathering which grows in a certain time and space, and it can be also quite ephemeral and quite temporary in a sense, or it can be a emerging community through, as Rux Media would call it, space making. A certain kind of community can grow in a pedagogic sense, that people come together and it builds up into a certain community. So, I think in this last 2 days sessions, we have been also, in yesterday's session also, these discussions were coming up. Okay, who is engaging and who is the community, or who is researching, and who is being researched. And many of the times this notion of power and positionality were being discussed in that sense. And I was remembering of this very important exhibition that happened at 2022 in Kassel, Documenta 15, where Rangrupa, which is a Jakarta-based Indonesian curators collective, they were given the responsibility to curate the exhibition, which is, if many of you might know, that it's a 3 months exhibition that happens every 5 years. And the proposition that Rangrupa gave
the Lambung idea of the rice coming from the rice festival rituals, and is about bringing in different collectives to share their way of working, their way of process into a kind of an exhibition moment. And what happened in the process was that there was a certain kind of a community that was being built or being meeting together in a certain kind of a conversation of different ways of engaging with social situations and other ways of critically engaging with socio-political aspects. And they were sharing their methodologies. I mean, I was remembering about the exhibition that we are seeing here, 10 years of IFA research support. And it's a kind of a emerging community that we see upstairs, where there's a certain criticality of how to engage in a more critical way with a certain research methodology, that you're trying to build up a dialogue between individuals and collectives, or between individuals and group of practitioners. And what happened in that exhibition was quite interesting. It was also critiqued because of their certain position about Gaza and what they represented in the part of the Biennale as a kind of a political statement also. That the form of that exhibition itself became a certain way in which a community was growing. And so they were hosting kitchens, people were coming and having food. So the whole divide between the viewer and the performer, or the researcher and the researched, or the maker and the experiencer, I mean, that was somewhere blurring out into a certain kind of a conversation. And the whole method of working together was becoming the tool in a certain way, and it was questioning the whole norm of exhibition making also, and what we can constitute as a community. Now, having said that, this kind of community building process also, we can see that there are certain very important examples within the Indian context that precedes this century, and talking about Tagore and also about Gandhi, and how they have imagined a certain kind of community through institution building, through creating a certain kind of pedagogic model, and also a certain kind of social system in which a certain community or the idea of a future community is being projected. Now, having said that, all these tools, I think, were coming from a very prefixed notion of what is tradition. And it's coming from a very high upper caste notion of what is education, or what is the notion of course, Gandhi's attempt towards building of a community was more addressed towards the Harijan, and bringing in a certain kind of working model of working with different tools that were more locally rooted and situated within a certain context. And Tagore was also looking at it from a very expression and practitioner's point of view, where coming together and learning was not necessarily imposed knowledge, but engaging with your environment, with the situation in which you are growing, and it evolves into a collective consciousness in a certain form. In this context also, I am remembering about Ritwik Ghatak's Communist Manifesto, where he is referring to the participation of the artists or the cultural activists into the mass, to educate the community, to educate the people towards a certain cultural consciousness, which I think became a major force during the IPTA movement, where we can see a lot of artists who are engaging with certain people's movements, patients' movements like Somnath Hor or Chitra Prasad. They were going to these movement sites, and they were making drawings of the life of the people. But in many of these situations, what was happening is that engagement as a community situation and art as a phenomena, as a process or a practice, was often looked at separate entities. And many of the time, when we look at Tebhaga's diary, we do not really appreciate or look at it as one of the artworks of, or an expression of the artist from an artistic point of view. It is more like an assignment which was given, which he was conducting for
the party itself. But these tools are certain very poignant methods which precedes what we call as community engagement today and how it operates. I think what we are discussing today, or the panel who are with us, will more look at the idea of the community as a more direct engagement coming directly from the practice, and research is extended into that notion, and not as this outsider's position of engaging with a community who has a certain kind of a mode of practice, and you are bringing in a certain tool of research to engage with it. In this context, I think we, as the discussion goes, we might also focus on some of the aspects of when and how an engagement itself becomes a form of practice, and not the separation or isolation of an artistic tool and community engagement as these two separate entities that are coming together. Because there are different segments that we can see. That one is this whole idea of engaging with the community to impart knowledge, to educate a community as this outsider who's coming with this huge body of knowledge and trying to build up a certain ecology. But there is this other notion of community where, as Urvashi ji was referring on the first day in a keynote address, about this whole idea of voice with the influence of the feminist discourses or with the Dalit aesthetic movements, that the notion of the community is no more representing the other. It is more voices that are coming out from the community as defined within a certain social speciality, a certain kind of engagement with the different tools that are coming from the practice of the daily life of a certain group of a community in that sense. So the idea of community, I think, becomes a very wide ranged and varied notion of how we define it today, especially if you look at it from the aspect of public art and how the notion of public art has evolved from this idea of monument making to engaging with the public and not making art in public space. I think that is again another distinction that I would like to make in this panel, is that when we look at artworks placed in public, it is more about an individual's innovation or way of conclusive argument about certain idea or situation, and you place a certain structure or a situation, experience in the public space. But when we talk about public art in a sense where public is the center, and when we talk about public also, it is not a homogeneous body, especially within the Indian context or in the cosmopolitan context. It is a configuration of multiple layered community life and community space, especially if we walk in the streets of India. There is no individual space that can be called independently public. There are layers of occupations and occupying those spaces by different layers of community life and community ideas. So there cannot be a singular method of engaging in that way in public art. And in that context, pedagogy within the community engagement becomes a very important tool, which we also would listen to their methods, and we will come to know that how pedagogy is not just coming from outside and imparting knowledge or educating a community, but it's also about shared space of making and learning, a shared space of engaging with issues where there is a kind of vulnerability that happens from the point of view of the person who is working with the community, and also the community who tries to engage with this outsider's view or a view that is coming from inside. So I will not go further into this initial reference, but would like to introduce the panel today. So we will start with Rohit. He is sorry, I will read your little bio because yeah, Rohit is an assistant professor in Lovely Professional University, Punjab, and he's also a researcher and theatre practitioner.
He holds postgraduate degree in performing arts and a diploma in theatre education from National School of Drama, Tripura. So we will first start with Rohit, and then I will introduce the next panel once. आप सभी को नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूँगा। संचयन दा आपको भी और पूरे हमारे कलीग। मेरा आर्ट्स रिसर्च का जो ग्रांट था 2017-18 में आईएफए से लिया था। उसके बाद से मैं लगातार उस पर वर्क कर रहा हूँ, जो बिहार के फोक आर्ट को लेकर है। नटुआ नाच जो विषय है, मेरा टॉपिक है दलित लोक गाथा, नटुआ नाच के प्रदर्शन में प्रतिरोध की भूमिका, रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ दलित लोक गाथा नटुआ नाच। मैं ऐसे जगह से आता हूँ, मैं गांव से हूँ, कस्बा है। मुझे इस तरह के नाच फोक आर्ट को देखने के मनाही रहता था। मैं जाता था तो मैं पिटाता भी था, मुझे मार भी पड़ती थी। मैं ऐसे एक क्लास से भी आता हूँ कि लोग ये कौन सा नाच देखने जा रहे हो, ये कौन सा है ये लोग। तो ये बचपन से मेरे ऐसा रहा कि ऐसा इस तरह के नाच मुझे क्यों नहीं देखने दिया जाता। तो फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। आज नाटक भी करता हूँ। आज घर के लोग थोड़ा खुश हैं कि हाँ कहीं पढ़ा रहा है, वो नाटक कुछ पढ़ा रहा है। मैं शुरू करता हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में लोक गाथा, 3 लोक गाथाओं पर मैंने वर्क किया है, उसको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी भूमिका। बिहार की लोक नाट्य परंपरा का एक स्वरूप है नटुआ नाच। नटुआ का अर्थ अभिनेता या नर्तक। नर्तक और अभिनेता पुरुषवाचक संबोधन है, अतः पुरुषों द्वारा अभिनीत स्त्री पात्र का रोल भी पुरुष करता है, उसे नटुआ कहा गया। नट एक जाति भी है, कला दिखाना उनका पेशा रहा है। नाच जो है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं नेपाल का एक प्रचलित जनप्रिय नाट्य रूप है। नाच नाम होने की वजह से अज्ञानतावश प्रायः इसे नृत्य, डांस मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। नाच, गीत, नृत्य, अभिनय, लबारी, कलाबाजी आदि का एक मिला जुला रूप है। इसलिए यहाँ नाच से अभिप्राय नाट्य है, न कि नृत्य। नटुआ नाच में लोक गाथा का आधार बनाकर कलाकार रात भर नाचते हैं, गाते हैं और अभिनय करते हैं। भारत में एक तरफ लोक गाथा को गाया जाता है जिसमें गीत के साथ कथा होती है, तो दूसरी तरफ बिहार में इसे नाट्य रूप देकर प्रदर्शित भी किया जाता है, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, कथा के साथ साथ अभिनय आदि होता है। इन सभी लोक गाथाओं में एक वीर के शौर्य की गाथा होती है। उस वीर को नायक को रूप में देखा जाता है, एक दलित समुदाय देखता है और भगवान भी उसे मानता है। लोक गाथा एक खास समुदाय, जाति या वर्ग की समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित होती चली आ रही है। इन सारी लोक गाथाओं में कथानक प्रधान होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति या परिवार के जीवन संघर्षों के माध्यम से पूरे समाज का चित्रण होता है। बिहार के हर एक क्षेत्र, समुदाय एवं जातियों की अपनी अपनी परंपरागत लोक गाथाएं हैं। बिहार में दलित वर्ग के बीच लोक गाथाओं की सशक्त परंपरा रही है। बिहार के लगभग हर एक हिस्से में तमाम स्थानीय भाषाओं में, बोलियों में दलितों द्वारा अपनी आकांक्षाओं, सपनों एवं संघर्षों को लोक गाथाओं के प्रदर्शन के जरिए अभिव्यक्त किए जाने की परंपरा है, जिसमें लोक गाथा है रेशमा चूहड़मल, दलत सलहेश, राजा सलहेश, दीना भद्री, मनसा राम और छेछल राम आदि। ये सभी लोक गाथाएं जातीय वर्गीय अस्मिता के साथ साथ सामंतवाद के खिलाफ प्रतिरोध का काम करती है। इस तरह के प्रदर्शन बिहार की दलित लोक गाथाओं की भौगोलिक व्यापकता तथा इनके अंदर प्रतिरोध के तत्वों और उनकी निरंतरता को रेखांकित करते हैं। सत्ताधारियों और उसके बिचौलियों द्वारा इस प्रतिरोध एवं कला का राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि बिहार के दलितों की परंपरा एवं चेतना में बसने वाली इन लोक गाथाओं के प्रदर्शन को उनके आज के मुक्ति संघर्ष के रूप में देखने की जरूरत है। दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में इन लोक गाथाओं का प्रदर्शन सामाजिक उत्पीड़न, वैश्विक हमलों के खिलाफ दलित मुक्ति संघर्ष में एक सांस्कृतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की संभावनाओं की तलाश भी है। वर्तमान समय में जब लाभ कमाऊ मनोरंजन के लिए कलाओं में फेरबदल कर दर्शकों के सामने परोसा जा रहा है, ऐसे में यह देखना काफी रोचक काम होगा कि लोक नाटकों में प्रमुखता से नटुआ नाच में लोक गाथाओं का प्रदर्शन केवल मनोरंजन या मनोरंजन के साथ साथ राजनीतिक विमर्श है। 3 लोक गाथाओं हैं जिस पर एक लोक गाथा पर डिस्कस करूंगा, कुछ वीडियो और फोटो दिखाऊंगा।
So this was a video clip from Deena Bhadri's ये दीना story. भद्री लोक गाथा का कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये जो वीडियो देखा वो दीना भद्री लोक गाथा का ही है। ये दीना और भद्री है, जिसे ये समुदाय अब कहता है कि ये मेरे राम लक्ष्मण हैं। ये दोनों भाई हैं और इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की गाथा का जो फिल्मों में एक फिल्म में जुड़वा फिल्म आई थी शाहरुख खान और सलमान खान का, उससे दम ये दोबारा इसे राजा मरवा देता है किसी तरह से, और फिर ये दोबारा जन्म लेके और उसे मारते हैं राजा को। ये दीना भद्री भाई लड़ रहे हैं राजा से। ये जो रावत सिंह हैं, राजा हैं, जो बेगारी कराना चाहते हैं जबरदस्ती, उसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। ये सारे पुरुष हैं जो स्त्री के रूप धारण किए हैं। मैं उनके साथ हूँ। एक जोकर भी होता है इनके नाटकों में, इनके प्रदर्शन में। तो दीना भद्री दो भाई हैं जो कि मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, बेगारी नहीं करना चाहते, अपनी पत्नी से, माँ से भी नहीं कराते हैं। लेकिन राजा वहाँ क्या है, कह रहा है कि क्यों नहीं करोगे, अपने से कैसे खाओगे, क्या करोगे। वो अपने से खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि करना पड़ेगा जबरदस्ती। उसके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ। और एक बार वो राजा को बांध के मारते भी हैं। इस तरह की भी बातें हुई हैं कि बांध के मारते हैं। इसका बदला लेने के लिए किसी तरह से षड्यंत्र रच के दीना भद्री को राजा मरवा देता है। फिर दोबारा जन्म लेते हैं और उसको राजा को मारते हैं, और पूरे अपने समाज को, अपने समुदाय को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। एक कथा आती है दीना भद्री के साथ कि जगन्नाथ मंदिर में ये पूजा करने गए, इन्हें पंडितों ने रोक दिया। तो ये 7 दिन तक भूखे प्यासे रहे, वहीं पे बैठे रहे कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर कुछ 7 दिन बाद वो कुछ नहीं हुआ तो वो अपने छाती से मंदिर का नींव को हिलाने लगे और वो दरकने लगा, फटने लगा। तब जगन्नाथ बाबा आए और बोले कि क्या है। फिर उनसे दर्शन हुआ उनका। दीना भद्री में एक है कि ये 80 मन धनुष और 84 मन तीर कंधों पर लेकर चलते थे। रेशमा चूहड़मल लोक गाथा। कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये भी तैयारी हो रहा है नाटक प्रदर्शन के लिए। ये वहाँ के मेकअप कर रहे हैं। रेशमा चूहड़मल लोक गाथा प्रेम गाथा है, जो रेशमा अपर कास्ट क्लास से आती हैं और चूहड़मल एक दलित समुदाय से हैं। चूहड़मल बहुत सुंदर, बहुत बलशाली, बहुत ईमानदार है रेशमा की नज़र में, समुदाय के नज़र में, उनके चूहड़मल के समुदाय के नज़र में बहुत सुंदर थे। तो रेशमा उनसे प्यार करना चाहती थी
उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप बड़े कास्ट की हो, हम तो छोटे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके लिए रेशमा विरोध करती है, अपने समाज से लड़ती है, अपने कास्ट से लड़ती है कि मुझे शादी करनी है, उससे क्यों नहीं हो सकता है। और चूहड़मल अपने हक सम्मान के लिए लगातार वो भी लड़ रहा है इसी गाथा में। ये रियल घटना है, परफॉर्मेंस हो रहा था बिहार के दाऊद नगर में, जिसमें चूहड़मल को सीधे गोली मार दी जा रही है कि जो दिखा रहे हो ये गलत है। चूहड़मल आर्टिस्ट जो है, जो रोल कर रहा था, उसको गोली मार दी जा रही है। ये बद्री नारायण तिवारी डॉक्यूमेंटिंग डिसेंट में उन्होंने ये लिखा है। 19 जून 1978 की ये घटना है बिहार की। तीसरा राजा सलहेस। राजा सलहेस का अनुष्ठानिक परफॉर्मेंस भी करते हैं। राजा सलहेस को भगवान मान के यहाँ आग में बैठ जाते हैं कुछ देर, उनको कुछ नहीं होता है, अनुष्ठानिक भी करते हैं। ये भी दलित, इन्होंने खुद राजा मान लिया है। उनके पैरेलल कि मैं भी राजा हूँ अपने समुदाय का, और इसके लिए वो दूसरे राजा से लड़ाई लड़ते रहते हैं आत्मसम्मान, सम्मान के लिए, हक के लिए। इसमें शादियां भी कराते रहते हैं। अगर अदर कास्ट से कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसको देखते थे एक लीडर के रूप में। तो राजा से राजा की भी लड़ाई होती है इसमें। इनके साथ एक है कि मंदिर खुलवाने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए जब जाते थे इनके समुदाय सलहेस के, तो मना कर दिया गया। तो अकेले ये गए मंदिर में, और मंदिर से शेर एक आ रहा था और इनको सीधे पंजा मारा और ये शेर को मार दिए। उसके बाद से मंदिर को खोलने की इजाजत मिल गई। इस तरह की ये लड़ाई होती रही। ये दलित समुदाय, ये इन लोगों के बीच बात करता हूँ तो कहते हैं हमारे लिए तो कोई वेद शास्त्र नहीं है, मेरा ये लोक गाथा यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। इन सारी लोक गाथाओं में पशु को रोकना, पशु को कहीं नहीं जाने देना, चरने देना किसी के खेत में, प्रेम, शादी, पानी को लेकर, नदी को लेकर, मजदूरी को लेकर, आर्थिक को लेकर, धार्मिक आज़ादी को लेकर, ये सारी लोक गाथाओं में देखने को। इस परफॉर्मेंस को अपर क्लास के लोग, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तो इग्नोर करते हैं, ये क्या है, गंदा है, ये क्या दिखा रहे हो, ये सब फुहड़ता है। और वो जो लोग आते हैं तो इस कंटेंट पर बात नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे क्या कोई डांस दिखाओ ना, ऑर्केस्ट्रा वाला कोई एक फिल्मी गाना बजा दो, वही ठीक रहेगा, हम थोड़ा जाना चाहते हैं, कुछ दिखा दो तो अगर लाए हो। तो इस तरह के उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसके कंटेंट को नहीं देखते, कंटेंट पर बात नहीं करते। ओके, हमारे पास 3 मिनट है, इसलिए मैं लास्ट में एक कविता है जो लोक गाथा और लोक गायिकाएं को लेकर एक कविता लिखी प्रभात जी ने, वो मैं अपने शोध और अपने लोक गाथाओं से जोड़कर देखता हूँ, उससे मैं समाप्ति करूँगा। प्रभात जी की कविता है लोक गायिकाएं। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर कोई उन्हें मुकाम हासिल करना है, वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती है। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं, इसलिए वे खलिहान में बैठे बैठे गाती हैं, तारों के नीचे 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 सोते सोते भी। बरसों उन्होंने मुंह अंधेरे जागकर घासलेट के चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं, वे डेरों के जमने के बारे में गाती हैं, वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया, वे उस रामायण को गाती हैं जो रामायण में लिखने से रह गई। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं, वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं, वे पक्षियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। उनका गाना आज से नहीं, आज भर के लिए नहीं, उनके विकल विरल स्वर अनंत काल के लिए है। 2 लाइन की एक कविता है महेश्वर की। सृष्टि बीज का नाश ना हो, हर मौसम की तैयारी है, कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है। धन्यवाद।
Thank you, Rohit, for this very detailed experience of yours working with the Natwa company and yours working. So our next speaker will be Anuradha. So Anuradha is a writer, a theatre activist. Her recent writing focuses on Palestine poets like Mossad Abu Toha and Noami Shibab, nice poems. So she works on as an educator with people specializing in constructive pedagogy and teachers capacity building programs. नमस्ते, मैं भी हिंदी में बात करूंगी और मैं अनुराधा हूँ, हरियाणा से हूँ। हरियाणा का नाम सुन के आपके दिमाग में जो तस्वीर उतरती होगी, कुश्ती करने वाले पहलवान जो ओलंपिक में और वो लड़कियाँ भी जो ओलंपिक में झंडा गाड़ के आती हैं। दूसरी तस्वीर ये भी है कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारे भी वहीं जा रही हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ जो इज्जत के नाम पे मारे जा रहे हैं। और हाँ, पंचायतें जिसके बारे में आप फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत छोटा सा एक तस्वीर है, मिला जुला कॉन्ट्रास्ट आपको नज़र आता है। मेरा जो काम है वो रागनियों पे है। रागनी इज ऑल्सो सिंगिंग फॉर्म हरियाणा की। जैसे इन्होंने नटवा के बारे में बात की है, वैसे ही मैं रागनियों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि एक कल्चरल एक्टिविस्ट होने के नाते जो मुझे एक प्रिविलेज मिला, एक चेतना मिली, उसके तहत मैंने चीज़ों को खंगाला है। और मैं उस तरह की रिसर्चर की अभिव्यक्ति मेरे पास नहीं है जो कि एकेडमिक इंटेलेक्ट होता है। तो मैं अपने अनुभवों से, जिस तरह की ज़िंदगी मैंने अपने आसपास देखी है, लोगों के बीच में जाके समझा है। और जब आप समुदाय में काम करने के बारे में बात करते हैं, जब समुदाय में बदलाव के बारे में बात करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है उसकी बुनावट को समझना, उसकी पुरानी परंपराओं को के सार को बीच में लाना, ताकि एक तालमेल, एक संवाद कायम हो सके। अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ गलत है, ये बदल दूँ, तो मैं अपने ऊपर खतरा ले रही हूँ और संवाद की जगह ख़त्म हो जाती है। तो पुरानी चीज़ को सामने, उसमें जो सार था वो किस तरह से सामने आया, उसमें महिलाओं और दलित की जो अभिव्यक्ति किस तरह से थी, और अभी जैसे चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी। जैसे कि मैंने बात की कि आज़ादी से पहले के हरियाणा के बारे का एक तस्वीर है, आज़ादी के बाद का और फिर इमरजेंसी के बाद का, जहाँ पे चीज़ें बदल रही थी, जहाँ लेफ्ट मूवमेंट और अलग अलग हस्तक्षेप की जगह बन रही थी। ये 3-4 सेगमेंट है। और उसके बाद फिर 19वीं सदी यानी ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया, उसके बाद किस तरह से शिफ्ट हुआ है। जाहिर है कि जो भी, जैसे कि रोहित की रिसर्च में नटवा नाच का रेफरेंस आया है, ये परिचायक विधाएं हैं किसी भी प्रदेश की। तो वैसे ही रागनी और सांग एक परिचायक विधा है, जिसके थ्रू हम हरियाणा की एक जर्नी देखना चाहते हैं। ख़ास तौर पे एक कल्चरल एक्टिविस्ट यानी एक नाटक की कलाकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते किस तरह का लेंस सामने आया है, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। We're going to see a clip. Yeah, it's about the Ragni, and you can see the Ragni here, the very famous singer Master Satbir ji. Play कर दीजिए। या इज्जत मोती के सिया ओ पिया मेरा धर दे नाम गुलाम इज्जत या मोती के सिया मेरा धर दे नाम गुलाब साथी तेरा चलूंगी बन में अपने घर चली गई तेरे आवे मन में मोती के नाम पिया के नाम गुलाब साथी तेरा चलूंगी बन में अपने घर चली गई आवे मन में
करिया ना कोई शक्ल प्यारी समझा तीर करिया। तो रागनी सुनने में बहुत ही खूबसूरत, मतलब धुन बहुत प्यारी है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, और इसकी सिंगिंग जो तरीका है, जो इसके गाने का तरीका है, बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद गाती हूँ पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रागनी को ट्राई करूँ। और आपने देखा कि किस तरह के भाव, किस तरह की बॉडी मूवमेंट और किस तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। और ज़्यादातर साजिंदे जो होते हैं वो दलित समुदाय से होते हैं। और ये जो किस्सा है, मास्टर सतबीर जी बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं और जाट कम्युनिटी से थे वैसे तो। और ये जो किस्सा है वो नल दमयंती का है। नल दमयंती एक राजा रानी हुए हैं। अगेन वही जो चीज़ें रहती हैं उनके बलिदानों की कथा है बेसिकली, कि नल और दमयंती ने किस तरह के कष्ट और आदर्शवादी जीवन जिए हैं, तो उसके बारे में है ये। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने दिया है कि कलाकार के तौर पे प्रस्तुति किस तरह की होती है, किस तरह के साजिंदे होते हैं और प्रेजेंट कौन करता है। बहुत दूर दूर तक वही एक जो चीज़ है कि सिंगिंग फॉर्म कहाँ से निकल के आई, वही क्योंकि थके हारे लोग आते थे, मनोरंजन की ज़रूरत हर एक आदमी को और हर एक समुदाय को पड़ती है। वो अलग बात है कि वो तब्दील फिर एक ख़ास समुदाय को सर्व करने में चला गया है, उस तरह से हो गया। सो अगर मैं बात करूं कि रागनियों में जो एक परिचायक है एक प्रदेश का, एक प्रदेश के बारे में जब आप नाम सुनेंगे तो जाहिर है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको सपना चौधरी और पुलिस वाले मिल जाएंगे जो कि हरियाणवी में दबंगई दिखाएंगे। बड़े स्वीट लोग होते हैं वैसे। उसके अलावा बहुत लेयर्स मिल जाएंगे आपके उनके व्यक्तित्व में। इस तरह के लोग मिलेंगे। रागनी में महिलाएं और दलित इस तरह से आए हैं। दलित इवन अगर आप देखें तो सांग, मतलब एक बड़ा मैं अम्ब्रेला मानूंगी, बहुत सारी रागनियों को मिला के कथानक चलते हैं, गायन शैली में कहानियाँ चलती हैं, वो सांग हो जाता है और वो कई दिनों तक चलता है। उसमें डायलॉग भी होता है, बिल्कुल जैसे ये नटवा नाच में एक रहा कि आदमी जो हैं औरतों के कपड़े पहन के आते हैं और थोड़ा सा एक एक ख़ास तरह के वो रहते थे। उसमें इतना सेक्सुअलिटी वाला मसला नहीं आता था। किस्से वैसे होते थे, राजा रानियों के होते थे, महिलाओं के संघर्ष आए हैं लेकिन राजकुमारियों के संघर्ष आए हैं। और वो हर तरह की समुदाय के लिए आदर्श का एक आदर्शवादी जीवन बनना चाहिए औरतों को, उस तरह से नल दमयंती का जिक्र आता है, सत्यवान सावित्री का जिक्र आता है। सावित्री खासतौर पे किस तरह से वो अपने पति को लेके समर्पित थी, मतलब कुल मिला के पेट्रियार्की और जो एक आदर्शवादी जीवन है उसके एस्टैब्लिशमेंट को लेके इस तरह का एक टूल के तौर पे ये विकसित होता रहा। उस ज़माने में अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा होते थे, उन्होंने उस तरह से इस्तेमाल किए हैं। और दलित लोग इतने मतलब उसका प्रवाह भी कर रहे थे, वो एक्टर भी थे और वो अपने घरों में प्रैक्टिस भी करते थे। महिलाओं के ऊपर भी, मतलब महादलित तो फिर महिलाएं ही है क्योंकि उनके ऊपर भी जोर है, तमाम तरह का जोर ज़बरदस्ती जो मैं दलित पुरुष है वो वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन दलितों को कोई कलाकार के रूप में सम्मान उस तरह से नहीं था। जैसे कि रोहित की बातचीत में जिक्र आया कि उनसे वो जैसे तमाम दूसरे जूती गांठना या पानी भरना इस तरह के काम है, उसी तरह का काम ये भी माना जाता था और वो भी रोजी रोटी के तौर पे ले रहे थे इस चीज़ को। मैं आपको बताना चाह रही थी कि सांग की शुरुआत ना अगर देखा जाए तो एक कृष्ण लाल भाट हुआ है। भाट इज़ ए दलित कम्युनिटी and another person is Ram Baksh, मतलब he's from Mountain community, but Ram Baksh you can imagine कि किस तरह से नाम आया होगा। उतनी जटिलताएं शायद उस वक्त पे नहीं होंगी और इसके बावजूद भी बड़ा सम्मान रहा है। और जोगी, मिरासी और भाट इस तरह की कम्युनिटी गायन में रही हैं, लगातार रही हैं। एक टाइम के बाद उसमें स्वर्ण लोग भी आए हैं गायन में और उन्हें बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा है। अगर आप सर्च करेंगे कि रागनियों में या सांग में जो सबसे अव्वल दर्जे के लोग माने जाते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद का नाम आता है। ही इज़ फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट एंड ही हैड टू फेस सो मैनी मतलब विरोध और तमाम तरह की चीज़ें। मतलब उसका अपना स्ट्रगल है, अपनी जात के स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना एक अपना अपने आप में एक स्ट्रगल है जो उन्होंने उस टाइम पे किया।
और उसी के समकाल में यानी उसी टाइम पे देर वर सो मैनी दलित रागनी सिंगर एंड आर्टिस्ट, तो उनको उतना सम्मान नहीं था। बाजे भगत एक पर्सन रहे हैं, मतलब बाजे भगत है और दयाचंद मायना है, बहुत बहुत ज़्यादा फेम उनका था। लेकिन मैं एक दो किस्सा आपको सुनाना चाहती हूँ कि बाजे भगत जो है पूरे अपने पालकी के साथ गुजर रहे थे किसी गांव में, और एक जाट बुजुर्ग ने उसे उतारा और बोला कि मेरे लिए हुक्का भर के ला। ही इज आस्किंग हिम फॉर गिविंग स्मोक, हाँ, स्मोक पाइप। एंड वो उतरे और वो लेके आए उनके लिए। तो वो जैसे कहते हैं ना कि अपने औकात में रहो। ही वॉज ट्राइंग टू रियलाइज दैट कि यू आर फ्रॉम दलित कम्युनिटी एंड आई एम फ्रॉम अपर कास्ट। तो इस तरह के स्ट्रगल रहे हैं। दाईचंद मायना जो है उस वक्त पे इतना फेम था उनका कि वो कार में जाते थे, पर अपने गांव में वो नहीं कार को लेके जाते थे। वो तमाम तरह की जो जात कम नीची जात का होने के बावजूद जो चीज़ें उनको करनी पड़ती थी वो उन्हें वहाँ पे भी करनी पड़ती थी। तो दलित इस तरह से आए, दलितों को कैरेक्टर के तौर पे नहीं दिखाया जाता था। बहुत कम राजे राजाओं की सेवा करने वाले, उनके गरीबी और उनको मदद करने वाले, इस तरह से दिखाया गया था। पर कभी लीडिंग, जैसे मैं नटवा उसके बारे में देख रही थी, हमारे हरियाणा में शायद इस तरह की मेरे ख्याल में कोई स्टोरी नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई सीधे तौर पे विरोध या विद्रोह से निकला हुआ कुछ चीज़ आई है। ऐसा मेरी नोटिस में नहीं आया। मैं और ये भी मानती हूँ कि बहुत कम दायरा है मेरी समझ का, पर जितना मैंने समझा उस लिहाज से। नाउ यू वांट टू, अब मैं अगर महिलाओं के बारे में बात करूं कि दलितों में महादलित महिला, क्योंकि उनके पास ना दलितों की जो आदर्श एक तरह से महत्वाकांक्षाएं थी अपर कास्ट को लेकर, जिस तरह से वो फॉलो करते थे वो भी उनको करनी पड़ती थी, और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी उनको शामिल कर उस तरह से झेलनी पड़ती थी। दलितों रागनियों में महिलाओं का कैरेक्टर किस तरह से आया, उनकी वेदनाएं आई हैं। राजकुमारियों का जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि सावित्री को क्या झेलना पड़ा अपने पति के लिए, वो सत्यवान पति के लिए जो यमराज तक लड़ गई। नल दमयंती राजा की बेटी थी और नल के साथ शादी हो गई और वो फिर जंगलों जंगल भटकती रही। और सीता का जिक्र आता है कि सीता किस तरह से, तो उनकी वेदनाएं आई हैं। मतलब ऐसा नहीं है, एक जो आदमी को मतलब एक बेसिक ह्यूमन चीज़ है वहाँ पे थोड़ी सी जगह मिली है महिलाओं के संघर्ष की, लेकिन उसमें भी फिर वही राजकुमारी और राज। दूसरा जो नज़रिया है वो जो कि लिटरेचर में मेरे ख्याल में, अंग्रेज़ी को लेके मेरी बहुत समझ नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर हिंदी साहित्य में ख़ासतौर पे ऐसा रहा है कि बहुत खूबसूरती का वर्णन रहा है, नक्सिक वर्णन जिसे हम बोलते हैं। तो रागनियों में भी ऐसा ही हुआ है। उनकी खूबसूरती, उनके अंग, उनकी भंगिमाओं, मतलब तमाम तरह की सेक्सुअलिटी जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है, वो यहाँ लेखन में आपको इस तरह से दिख जाएंगे। सो एक चीज़ और कि रागनियाँ और सांग थे जिसमें महिलाएं थी, लेकिन वाकई में महिलाएं नहीं थी। चरित्र के तौर पे थी, कल्पनाओं में थी, लेकिन महिलाएं ना दर्शकों में थी ना स्टेज पर कलाकार के तौर पे थी। तो ये एक विडंबना रही है रागनियों के साथ। उसमें मतलब वो अगेन पुरुषों का और अपर कास्ट का एक भोगनीय वस्तु की तरह से ये फॉर्म बनी, जिसमें सर्व कौन कर रहे थे? दलित लोग, मतलब दलित कलाकार जो है साजिंदे वाजिंदे। और उसके बाद भी फिर मैंने बताया कि स्वर्ण कास्ट भी जब आने लगी तो उनको वो मंच भी छोड़ना पड़ा। फिर मतलब जाहिर है कि आप वो ग्लोरिफिकेशन भी आप ले रहे हैं, फेम का भी ले रहे हैं, तो फिर वो और कॉर्नर हो गए। तो उनके पास वो जो अभिव्यक्ति जो चीज़ थी जो उनके मन को अच्छी लगती थी, वो भी फिर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जो पंडित लक्ष्मीचंद, जिसका मैं नाम बता रही हूँ, ब्राह्मण उससे थे, और उनकी जाहिर है कि पढ़ने लिखने की तमाम सुविधाएं मिल गई थी। दलितों की लिखी हुई रागनियों में और उनकी भाषा में उनके कैरेक्टर को किस तरह से गढ़ना है, उनके और मतलब एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों की भाषा में, दोनों की तसव्वुर में बहुत फ़र्क दिख जाएगा। तो मैं जैसे बता रही हूँ कि खूबसूरती का वर्णन बहुत ज़्यादा मिलता है। मीरा के बारे में उन्होंने कहा है, मीरा जो कि अपने ज़माने में अगर उसको देखा जाए तो वो अपने आप में एक फेमिनिस्ट महिला रही है। तो मीरा के बारे में बताया गया है कि मदन सेन
चंद्रकिरण एक कैरेक्टर है, वो मीरा को देखते हैं और राणा को बताते हैं कि वो किस तरह की महिला है, उसको आपको हासिल करना चाहिए। तो मैं हरियाणवी में बोलूँ फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी एंड लेटर शी विल हेल्प यू। चक्कर चढ़ता आवे से ना सोदी मैं शरीर, मेरे जिगर में खटके से इस फोटो वाली बीर, मद जोबन की बल्ले बड़े अंगीठी, जाने कद बोले मिठी मिठी, एक हाथ की गिट्टी, गिट्टी माने गर्दन, मैं ते जाता दिखे नीर, देख के प्रेम ये में जागे, मन मेरा पक्षी बन के भागे, मेरी जड़ में इसी लागे, जुड़ू रांझे धोरे हीर। रांझे और हीर को भी ले आए मीरा के कॉन्टेक्स्ट में। सो आप देखिए द वे दे आर यूजिंग मेटाफर, मतलब आई थिंक इट इज कॉल्ड मेटाफर ना। तो आप ये देखिए कि वो ये कह रहा है कि इस रागनी में उसके रूप का वर्णन है कि वो इतने खूबसूरत है कि मेरे को उसको देख के चक्कर आ गए, मतलब मैं होश गवा बैठा, थोड़ी सी खूबसूरत हिंदी में बोले या उर्दू की उसमें, और मेरे कलेजे में उनकी रूप की छवि है वो इस तरह से चली गई है कि मतलब मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे मतलब एक तरह से उनके यौवन की जो छाया है मेरे ऊपर इस तरह से पड़ी है कि मेरे को उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो अगर मेरे सामने, मैं उनकी छाया के साथ भी ऐसे तसव्वुर करता हूँ, कल्पना करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना ऐसे जोड़ी है मेरी और उनकी कि रांझा और हीर है। एक जो उनके लिखा हुआ पद है, थारे देसा में राणा साध नहीं, लोग बसे सब कूड़ो, वो वो क्रिटिसाइज करती हैं कंगन जूड़ा सब कुछ त्यागो, कि मैंने जो कंगन है, जूड़ा बांधना है, श्रृंगार की सारी चीज़ें त्याग दी, और यहाँ पे वो उसको श्रृंगार से जोड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि चेतना किस तरह से काम करती है। एक कैरेक्टर है नूणा दे। नूणा दे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक सांग है, हाँ, तो उसमें एक कैरेक्टर आता है नूणा दे। नूणा दे एक लड़की है जो कि जिसका बाल विवाह हुआ है, बेमेल विवाह हुआ है। उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में एक बूढ़े राजा के साथ उसकी शादी कर दी, और उसका सौतेला बेटा है, वो उसको सेक्चुअली मतलब कोशिश करती है, एक्सप्लॉइट नहीं करती, वो चाहती है कि उसके साथ संबंध बनाए, क्योंकि राजा जो है वो बूढ़ा है एंड शी नीड्स, मतलब उसको फिजिकली नीड है, तो वो मना कर देता है और वो कहता है कि आपको पतिव्रता नारी होना चाहिए, और तमाम तरह की चीज़ मतलब वो उसको गिनवाता है। तो वो क्या करती है कि राजा को उसके खिलाफ भड़काती है। कैरेक्टर की जर्नी में आपको दिखा रही हूँ। और उसकी माँ जो है, लड़के की माँ यानी उसकी सौत जो है, वो उसकी वेदना है एक जगह पे, और एक उस नूणा दे का कैरेक्टर है। तो दोनों मतलब अपनी अपनी जगह पे कितनी पीड़ित हैं उस तरह से देखा जाए, तो ये भी कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं, मतलब बुनावटों में महिलाओं को किस तरह से रखा जाता है। तो उसके बाद की जर्नी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा ऐतिहासिक रागनियों पे मैंने नज़र डाली है। तो जैसे आज़ादी के आंदोलन के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, जैसे आर्य समाज का एक इन्फ्लुएंस हरियाणा पे काफ़ी देखा गया है। भजन मंडलियाँ शामिल हुई, भजन मंडलियों में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की गई। वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे महिलाओं की बात की गई भजन मंडलियों में। फिर रागनियाँ भी तब्दील हुई, महिलाओं ने गाना भी शुरू किया इस तरह के मंचों पे, और तमाम तरह की चीज़ें हुई। फिर उसके बाद इमरजेंसी जब लगी, इमरजेंसी के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा देश भर में विरोध हुए, और मतलब हस्तक्षेप, कल्चरल हस्तक्षेप आइडेंटिफाई किए गए। हरियाणा में भी थोड़ी लेफ्ट ओरिएंटेशन एक तरह से आई। वहाँ पे फिर वही एक मुद्दा जो था कि पुरानी चीज़ों को दोबारा से खंगाला जाए, पुरानी चीज़ों से सार निकाल के संवाद किया जाए। तो उसके बाद कुछ प्रोग्रेसिव एक स्ट्रीम निकली पुरानी चीज़ों में से एनालिसिस करके कि जो मतलब अच्छी मतलब की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें रागनियों में, पुरानी रागनियों में सीता के बारे में जो लिखा गया है, उसके दुख के बारे में जो लिखा गया है, द्रौपदी जो डायलॉग करती है कि तुम्हारे राजे, मतलब मेरे चाचा भतीजा इतने सारे लोग हैं, मेरे संबंधी सगे संबंधी है, सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तो वो विरोध की भाषा पुरानी ही रागनियों में से छांट के लाई गई और अपना भी नया शामिल किया गया। तो उसके बाद हुआ ये कि एक तस्वीर बदली है, दलित लोगों ने खुद ने लिखना शुरू किया। अब तक क्या हो रहा था कि महिलाओं की बात
पुरुष कर रहे थे दलितों की बात, दलितों की चेतना, मतलब दलितों के बारे में बात। अब दलित एज टूल नहीं था उनके जीवन को बीच में लाने के लिहाज से, वो खुद करने लगे। यहाँ हुआ ये कि दलितों के बारे में महिलाएं लिख रही हैं, महिलाओं के बारे में दलित लिख रहे हैं। ये एक खूबसूरत चीज़ सामने निकल के आई। जाहिर है कि कमोबेश एक ही स्थिति है, साझी लड़ाई सामने देखी। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ और मुझे रागनी पर काम करने में जो स्ट्रगल फील हुआ, और मैंने एक दलित लड़के, अशोक मेरे जीवन साथी हैं, और इसमें भी मतलब आप ये देखिए कि बनावट क्या है, और एक जो सार निकल के आता है कि एक सार ये है कि दोनों की लड़ाई एक जैसी है, तो फिर साथ भी क्यों ना आए। तो इस चीज़ की स्वीकार्यता, इस तरह का स्ट्रगल रागनियों में भी दिखाई देता है। मैं आपको एक रागनी बताना चाहती हूँ। रामफल जख्मी जी रहे हैं। रामफल जख्मी जो है वो एक दलित राइटर रहे, अनपढ़ आदमी थे। उन्होंने साक्षरता के आंदोलन में पढ़ना सीखा और उन्होंने महिलाओं के बारे में रागनी लिखी। तो मैं आपको एक रागनी बताना चाह रही हूँ। पाड़ बगा दो बहना चुप की चुनरिया। चुनरी इज द सिंबल ऑफ साइलेंस। चुनरी, यू ऑल नो दिस चुनरी, द दुपट्टा। तो वो कह रहे हैं कि पाड़ बगा दो बहना चुप की चुनरिया, इस चुनरी ने गले को घोटा। मतलब हम लोगों का जीना मुश्किल किया। जुल्म करे बोलन ते रोक्या, जकड़े राखी पिया की अटरिया। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज, मतलब एक तरह से पैट्रियार्की को एक सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है एक दलित आदमी। वो अपनी तमाम चीज़ें अपने पुरुष होने के उसको भी मतलब एक तरह से चैलेंज किया है उसने। पाड़ बगा दो बहना चुप की चुनरिया, इस चुनरी ने जुल्म गुजारा, चुनरी में दुबक्या हाथ हमारा। इस चुनरी ने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए हैं कि हम सिकुड़ के ही रह गए। चुनरी में दुबक्या, ये थोड़ी सी ऐसी रागनी है जो शायद आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा हिंदी भी है। खूब पिटाया हमें सारी ही उमरिया, हमें मतलब हमारे उसमें शुरू से लेके आखिर तक पिटा ही रहा, मतलब पिटते ही रहे। चुनरी पर पति परमेश्वर बोले। चुनरी जो है वो अपने पति के साथ ही जोड़ी जा रही है। जिंदा जड़ी चुनरी के ओले, इनटू द वेल, मतलब आपको जला दिया गया है। उस टाइम पे भी पर्दे रखे गए। तो खड़ी खड़ी हंस रही सारी ये नगरिया, पाड़ बगा दो, मतलब कोई किसी ने इंटरवीन नहीं किया। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हरियाणा में। तो ये रेफरेंसेस हैं। और एक और रागनी है, थोड़ा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक लड़ाई में लोग किस तरह से साथ में आए। दलित हैं, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसमें भी थोड़ा सा मानवीय सार था, वो सब एक जगह पे एक पटल पे साथ आए। तो एक रागनी, और वहाँ उस ज़माने में, उस टाइम पे जो हो रही घटनाएं थी उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया बाकायदा। एक रागनी है, वो मेरे पिताजी हैं, मैं बताना चाहूँगी, मंगित राम शास्त्री जी। एक केस हुआ था हरियाणा में, दुर्जनपुर में। एक स्कूल में 2 टीचर थे जिन्होंने बलात्कार किया, और वो सीधा तब पता चला जब 7 लड़कियां प्रेग्नेंट थी, 7वीं से लेके 10वीं तक की, जिसमें से 2 लड़कियां अपर कास्ट थी, और उस चीज़ पे किसी ने बात नहीं की थी। आप सोचिए कि किसी ने बात नहीं की थी। उस वक्त में मेरे पिताजी ने एक गीत लिखा था, लेकिन इस गीत को सबने गाया। मैं आपको ये मतलब वो है ना कि कल्चरल हस्तक्षेप जिसे हम कहते हैं, ये एक ज़बान के तौर पे सामने आया। ना महफूज आबरू रहरी, बचा नहीं विश्वास सखी। मतलब हम सबकी, मतलब लड़कियों के संदर्भ में है कि किसी की आबरू जो है वो महफूज नहीं है, मतलब देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ आवर व्हाट वुड यू से प्रेस्टीज, और मतलब हमारी इज्जत की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किस पे करें भरोसा है बेबे, कोई बची ना आस, देयर इज नो होप। मतलब हम किस पे भरोसा करें, किसके साथ हम अपनी सुरक्षा निहित करें। आज फूल ने मसड़न लाग गया, आप बाग का माड़ी है। मतलब टीचर जो थे वो एक तरह से मतलब प्रोटेक्टर के तौर पे थे, वो शेप दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ही उन लड़कियों के साथ किस तरह से किया। सब कि में न्यू खावण ना आवे, कोई बचा ना रुखाड़िए। मतलब यहाँ पे ये घरों में जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उन पे भी बात कर रहे हैं। तो ये पूरी रागनी है। इस घटना के बारे में किसी ने बात नहीं की, लेकिन उस घटना के विरोध में जैसा भी टूल उनके हाथ में आया, ये गीत बहुत ज़्यादा गाया गया। तो मतलब कई बार ये होता है कि आप नॉन वर्बल या मतलब शेड में भी कुछ चीज़ें कहते हैं। ओके, मेरे पास अभी समय का थोड़ा घाटा हो गया है। बस मैं एक आखिरी ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी लड़ाई जारी है, कोई तस्वीरें उस तरह से नहीं बदली हैं।
अभी भी लड़के लड़कियां मारे जा रहे हैं और अभी भी लोग लड़ रहे हैं। और एक अंत में हमारी एक साथी है, अभी भी रागनियों में महिलाएं लेखिका कम है। कलाकार के तौर पे आ गए हैं सपना चौधरी और वो तमाम तरह की, वो अलग बात है कि उनको भी ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो मुकेश यादव एक है, उनकी आखिर में मैं बताना चाहती हूँ एक रागनी, और उसके साथ में फिर मैं हैंड ओवर करूँगी अपने साथी को। हेजी बदन में गहरी बेदन छाई, आधी जिंदगी बीत गई, मेरे ईब समझ में आई। मतलब वो कह रही है कि मेरा सारा अधेड़ औरत की का कैरेक्टर वो सोच रही हैं कि तमाम जीवन मेरा बीत गया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या क्या है। देश ने आज़ाद बतावे या जिंदगी मेरी गुलाम क्यों, जब देश आज़ाद हो गया तो मेरे हिस्से में गुलामी क्यों है। 10वीं तक पहले नंबर थी, कट गया मेरा नाम क्यों। ड्रॉप आउट हो जाती है ना लड़कियां, शादियों के अलग अलग पड़ाव है, एमए कर गई तो तुम्हें पीएचडी वाला लड़का मिल जाएगा, पीएचडी कर गई तो तुम्हें सरकारी नौकरी, तमाम तरह के। कुरड़ी का धन है, मतलब कि पराया धन, नू जीना मेरा हराम क्यों। तो वो वही वाली बात है ना, पहले महिलाओं के बारे में लिख रहे थे, अब वो खुद भी आ रहे हैं एक दूसरे की। मैंने बताया दलित महिलाएं किस तरह से साथ में आए, और जो अपर कास्ट के भी जो असर्शंस आए हैं एक इंसान होने के नाते, ये एक साझा संवाद पैदा कर रहे हैं। तो मैं आखिर में जो संचिन दा ने जो बात कही थी कि रिसर्च इस तरह से भी है, अपने अनुभव और अपनी देखी हुई चीज़ों को साक्षी मानकर उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, वो तब्दीलियों का साक्षी होना। तो और इसमें जनवादी नाटकों ने, जनवादी आंदोलनों ने बहुत काम किया। जाहिर है कि अगर मेरे पास वो चेतना नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संचिता। Thank you, Anuradha, for this very insightful presentation. I think if we had more time, we could have listened to more of the poems and the texts, but we can always reflect back in the panel later on. So now we have Ashok Lote. He's a theatre practitioner with over 20 years of experience, having collaborated with several theatre groups, directors, and the National School of Drama with over 2,000 performances. Since 2005, he has been working in Haryana as a theatre activist with Jananatak Manch. So I request Ashok to share his experience. थैंक यू संचन। मेरा नाम अशोक है, मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि संचय दा ने बताया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा भी कोई रिसर्चर का बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई एकेडमिकली मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पे मैंने जो देखा है और जो खुद अनुभव किया है वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा काम है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, एक थिएटर ग्रुप कह सकते हैं हम उसको। तो सबसे पहले मैं उसके इतिहास के बारे में बात करूँगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हम कह सकते हैं कि हुई है। जैसा कि अनुराधा ने अपनी बातचीत ख़त्म करते हुए आपको बताया कि इमरजेंसी का एक दौर आया जिसमें कुछ चीज़ें उभर के आई, उसमें कुछ संगठन, कुछ ग्रुप्स ऐसे डेवलप हुए, जैसे कि हरियाणा में भी उसी समय पे। और पूरे एक इमरजेंसी के दौर में तो आपको पता है कि पूरे देश भर में एक ऐसी लहर पैदा हुई थी जिसमें कुछ संगठन ऐसे उभर के आए थे। तो उसमें हरियाणा में भी एक जनवादी लेखक संघ के नाम से एक ग्रुप बना। कुछ कहना चाहिए? जनवादी लेखक संघ एक उभर के आया एक ग्रुप, जिसने पूरे हरियाणा में एक तरह से देखा कि किस किस चीज़ों पे यहाँ पे काम हो सकता है और कैसे कैसे यहाँ की चीज़ों को समझ के और पूरे हरियाणा के एक परिप्रेक्ष्य को देखा। तो एक नाटक की उत्पत्ति उन्होंने सोची और उसका एक मतलब एक शुरुआत कह सकते हैं कि वहाँ से हुई। मैं इस नाटक के बारे में बताऊंगा कि ये एक ऐसा थिएटर ग्रुप है जिसमें बहुत से नाटक लिखे गए, लेकिन उनकी कोई रूपरेखा ऐसी तय नहीं थी कि किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने देखी और महिलाओं की जो स्थिति थी, जो दलितों की स्थिति थी,
जो अपने मतलब मैं भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। लोगों को वहाँ पे पता ही नहीं होता कि आपकी समस्याएं क्या हैं। वो सोचते हैं कि जो समाज आपको दिया गया है हम उसी में रहें। तो उस तरह से लोगों ने अपने इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश की। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने उनकी हेल्प की। तो फिर नाटक लिखना शुरू किया। तो एक नाटक है जिसका नाम है एक नई शुरुआत, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया। इस नाटक को 12 साल में लिखना मतलब लिख के पूरा किया गया। इस नाटक का एक मैं छोटा सा आपको एक परिचय दूंगा। ये नाटक एक दलित लड़की के ऊपर लिखा गया था, जिसमें बहुत तरह की सेवरल एक वो दिक्कतें सामने मतलब देखी और उसको लेके ये नाटक लिखना शुरू किया। तो दलित लड़की होती है, उसका कुछ अपर कास्ट के कुछ लड़के रेप कर देते हैं और वो लड़की किस तरह से अपने मतलब हक के लिए लड़ती है और आखिर में उसकी जीत होती है। तो ये एक नाटक था जिस को लेके एक जत्था निकाला गया था। 99 में लिखा गया और उस समय पे इस जत्थे की शुरुआत हुई थी। ये वो लोग हैं जो लेखक संघ के जो लोग हैं जिन्होंने नाटक को लिखा और खुद रिहर्सल की और इसको हरियाणा के अलग अलग जगह पे ले जाने की कोशिश की। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रस्तुति है एक नई शुरुआत नाटक की। मतलब जैसे अनुराधा ने बताया कि एक सांस्कृतिक उसने इतिहास को बताया हरियाणा के स्वांग होते थे जिसमें कहीं पे भी महिलाओं को नहीं देखा जाता था। एक दर्शक के तौर पे भी महिलाएं स्वांग में नहीं होती थी और ना ही रागनी कंपटीशन में होती थी। तो एक पुरुष समाज था जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन महिलाओं को कहीं पे भी नहीं देखा जाता था। तो ये कुछ नाटक की तस्वीरें हैं। ये अभी की हैं, वो जो मैंने दिखाई थी ब्लैक एंड वाइट वो पहले की थी, लेकिन ये आज तक हरियाणा में ये नाटक होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि महिलाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों में कहीं पे भी नहीं देखा जाता था। तो महिलाओं ने अपने तरीके से कुछ चीज़ें खोजी कि जैसे वो हमारे हरियाणा में अगर देखा जाए शादियां होती हैं तो वहाँ पे गीत गाती हैं महिलाओं की अलग अलग मंडलियां होती हैं, उनमें पुरुषों का आना नहीं होता, बैन होता है एक तरह से। और एक खोड़ा खोड़ी के नाम से एक नाटक की तरह से ही उन्होंने डेवलप किया है इसको, और अलग अलग जगह पे भी खेला जाता है। मेरे ख्याल अलग अलग नाम से झारखंड में है, उसमें लड़का लड़की के नाम से है, बिहार में है उसमें किसी और नाम से है शायद। तो ये खोड़ा खोड़ी है, हरियाणा का ही एक नाटक कह सकते हैं जो महिलाएं अपने तौर पे डेवलप किया है महिलाओं ने, और ये आज तक भी होता है हरियाणा के गाँव में। इसको खोड़ा खोड़ी कहते हैं। ये असल में जब किसी लड़के की शादी होती है तो महिलाओं को बारात में ले जाना मना होता है। तो वहाँ पे महिलाओं ने अपने लिए ये खुशी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक तरह की एक फॉर्म डेवलप की जिसका नाम है खोड़ा खोड़ी। वो पूरे शादी का इसमें एक नाटक तैयार करते हैं और पूरा परफॉर्म करते हैं अपने अलग तरह से, मतलब जिसमें पुरुष नहीं होते। तो इसमें मुख्य बात ये है कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने जब ये नाटक लिखा और इसका जत्था लेके वो अलग अलग हरियाणा के हिस्सों में गए, तो वहाँ पे इन लोगों ने खुद मिलके ये नाटक तो किया, लेकिन जब दूसरे लोगों को जोड़ने की बारी आई तो असली चुनौती तब सामने आई कि लड़कियों को और लड़कों को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे नाटक में शामिल किया जाए। तो मतलब एक तरह से बहुत मुश्किल था कि लड़कियों को नाटक में लाया जाए। अब आप देखेंगे कि हरियाणा की एक तस्वीर है कि किस तरह से पितृसत्ता हैवी है और वहाँ पे महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। तो उस समाज में बहुत मुश्किल से एक साक्षरता के दौर में एक नाटक था, मतलब साक्षरता के ऊपर नाटक करते थे, तो उसमें महिलाओं को शामिल किया गया, उनके घर पे जाके बात की। तो साक्षरता के नाम पे तो वो निकल के आई, लेकिन जब इस तरह के नाटक करने की बारी आई, एक नई शुरुआत जैसे नाटक जिसमें बलात्कार का सीन है और मतलब दलित और अपर कास्ट को दिखाया गया, तो वहाँ पे सब लोग डरते थे और बड़ी मुश्किल से मतलब उनको शामिल किया गया।
तो उनमें से जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं आगे चल के उन पे बात भी करूंगा, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं। इससे पहले मैं नाटक की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस नाटक की कोई रूपरेखा नहीं थी, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में ये नाटक करना था और हर जगह मतलब ऐसा कोई स्पेस नहीं था कि कोई हॉल मिले या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे ये नाटक तय करके किया जाए। तो अलग अलग हिस्से, जैसे कि ये चौपाल का है जिसमें कहीं पे भी कोई भी ऑडियंस बैठी हुई है, ऐसा नहीं है कि सामने की तरफ ऑडियंस होगी। तो इसको उसी समय पे स्टेज के रूप में भी परफॉर्म किया जा सकता है और उसी समय पे नुक्कड़ के फॉर्म में भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये एक बड़े हॉल में बड़ी स्टेज का नाटक है और ये एक किसी स्कूल में एक छोटा सा स्टेज था, उस पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये एक नाटक है जिसका नाम है इन्हें जीने दो। तो मैं इस नाटक के कुछ स्क्रिप्ट्स पे बात करना चाहूँगा जो इस माहौल में उन्होंने जो देखा और जो लिखने की कोशिश की। तो ये नाटक है इन्हें जीने दो। इन्हें जीने दो में एक दो लड़का लड़की की कहानी है जो आपस में प्रेम करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। तो ये हरियाणा की एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि वहाँ पे लड़के लड़कियों को किस तरह से इज्जत के नाम पे मारा जाता है। तो उस के ऊपर ये एक नाटक बनाया था और इसको अलग अलग हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लेके गए और वहाँ पे मतलब कलाकारों पे एक तरह से मतलब हमले भी हुए और बड़ी मुश्किल से इस नाटक को किया था। ये कुछ गलियों के सीन हैं जिसमें हम ऑडियंस को इकट्ठे करते हैं। ये एक स्टेज परफॉर्मेंस है, सिंगिंग परफॉर्मेंस। ये फेरी लगाते हैं जब ऑडियंस को बुलाते हैं। तो लास्ट में मैं एक फिल्म दिखाना चाहूँगा जो मीरा दीवान जी ने 2005 में बनाई थी और उसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिया गया था, भ्रूण हत्या। लेकिन ये एक पूरे हरियाणा के थिएटर को, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जनवादी थिएटर, उसको मतलब समझने में हेल्प करती है। हिसार, करनाल, अंबाला, रोहतक, Kurukshetra. Haryana's districts with daughters on the decline. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। Census 2001. 945 girls to 1,000 boys. All India. उड़ने की आशा। 900 girls to 1,000 boys. Haryana. भोली सी आशा। Haryana's alarmingly low sex ratio has brought them all together. A motley group of budding writers, singers, actors, theatre activists and organizers. Their shared passion, traveling community plays or jathas. The many hundred journeys through the girl-unfriendly landscape of the state are made with a single purpose, motivating audiences to value their daughters. Civil society and women's groups, youth and people's science forums have scripted their own experiences against the backdrop of the bitter reality of Haryana's misogyny.
जो ये नाटक है इसमें पहला सीन मतलब हमारा भ्रूण हत्या के ऊपर ही, भ्रूण हत्या का ही सीन है किस तरह से, और मतलब उसमें जो दिखाया गया है ना वो बिल्कुल है कि ना मतलब एक औरत के ऊपर ना पूरी फैमिली का एक पूरा प्रेशर रहता है कि ना उसको वो अगर पेट में लड़की है ना तो उसे गिरानी ही पड़ेगी। बेटा कुल की नाक है, खानदान की शान, किशन कन्हैया जन सके, किशन कन्हैया जन सके, नारी वही महान, नारी वही महान, नारी वही महान। गया था बेटा डॉक्टर के पास? हो गई है डॉक्टर से बात। The process of creation of the Jathas is steered by the Janvadi Lekhak Sangh, a progressive writers group. Bringing into the open the reality of female feticide and female infanticide is both traumatic and empowering for the young actors. Girls understand they are acting out the hostility they themselves face every day. मान ले बात, करा ले सफाई। अरे भगवान ने चाहा तो अगली बार। The use of local dialect, colloquial phrases, folk music, and other oral traditions makes the storyline and its inherent pro-daughter messages compelling and easy to relate to. सत्यानाश कर दिया कुलबे का। अरे घर में बिठा कर तेरी पूजा। Through the unfolding narrative, the Jathas re-examine commonly held beliefs that have been perpetrated through the times. The script demystifies age-old myths, such as the birth of daughters being a bad omen for the family and holding the mother responsible for the sex of her child. भांडुली पैदा करके बैठी है। जी का जंजाल, जी का जंजाल, जी का जंजाल। लड़की पेट में है तो मेरा कोई कसूर है? मर नहीं जाएगी तू। मेरे शरीर का हाल तो मुझे नहीं पता। The play adopts a holistic approach in dealing with the theme of its state's declining sex ratio. It brings home to the community its linkages with a highly patriarchal society. एक तू ही गणी बनती है। हाँ, मेरी जान की तुम्हें क्या करना? झट दूसरी ले आओगे। बहुत बोल ली। Typically and conveniently, the mother who resists female feticide is singled out for blame. ज़बान चलाती है, हरामजादी। बस। जब लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई माएँ जो हैं वही मतलब दुश्मन है लड़की की, वही जो है जाके गर्भपात कराती हैं, वही लड़की को नहीं चाहती हैं, वही भेदभाव करती हैं, तो वो ये नहीं, ये साथ उन्हें ये देखना चाहिए कि खुद वो माँ जो भेदभाव की शिकार होती है, वो खुद जो है उसकी हत्या अनेक तरह से जो है वो होती है, या खुद असमानता की वो कई तरीके से मतलब शिकार रहती है, और वो खुद बहुत असुरक्षित है, और खुद मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही नियंत्रित है किसी और शक्ति के द्वारा। स्त्रियों के ऊपर इल्जाम लगाना तो यही है कि जो पीड़ित चार पैसे घर में लाती है। मैं एक साधारण लड़की थी, हूँ मैं मजदूर परिवार से, तो एक तरह से हिचकिचाहट थी, लेकिन एक नई शुरुआत नाटक और दूसरे नाटक ने मुझे इस तरह दृष्टिकोण दिया, आत्मविश्वास मेरा बना, और कई जो है अवधारणाएं टूटी हैं नाटक से जुड़कर, चाहे वो अंधविश्वास है या फिर रूढ़िवादिता है, वो सब नाटक से ही जुड़ के टूटा है। The play's success in the state creates a backlash, which can become a drawback for its young performers. उससे पहले हमें पता ही नहीं था, चाहे कुछ भी होता, चाहे छेड़छाड़ थी, भ्रूण हत्या थी, उसके बारे में पता नहीं था, ये था कि ये तो ऐसे ही होता होगा। फिर जब हमने नाटक करने शुरू किए तब हमें लगने लगा कि हाँ, लड़कियों के साथ ये तो जाती होती है। Some are denied participation. Others withstand regular beatings before they are allowed to take part. In the face of such pressure,
25 local teams have emerged. Almost every village has its own theatre repertoire. Gradually, the family members begin to relent. हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने घरों में पूरा संवाद बनाया है अपने माता पिता के साथ, और मतलब इस नाटक के बाद ही ना लड़कियों में ये चीज़ आई है कि हम अपनी बात कह सकें, अपने अपने माँ बाप से वो बात हम कह सकें, और वो कही गई हैं। और फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स में इतना चेंज मतलब आया है, वो हमें लगा है कि हमारी बात हमारी वजह से, हमें लगता है बिल्कुल कि वो हमारी वजह से आया है। किसी लड़की के साथ है ना बलात्कार भी हो जाता है तो परिवार वाले ये कहेंगे कि ना बेइज्जती होगी हमारी, अगर किसी को पता चलेगा तो लड़की को भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे गांव में ना कोई भी लड़की ऐसी नहीं बची जिसके साथ शादी के बाद बुरा ना हुआ। किसी के पति ने उसको जला दिया, किसी ने तलाक दे दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं भी उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो जाऊं। मतलब परिवार में लड़कियों के साथ जो मतलब खुद घर वाले जो छेड़ जो छेड़खानी करते हैं। इसी तरह से मेरे मामा जी का एक बेटा था, मतलब रात को मैं तो भाई करके हम लोग साथ में सो गए सारे बच्चे। बहुत गलत हरकत मेरे साथ की। ये लड़कियां जिस तरह के चौतरफा संकट से वो घिरी हुई हैं, हर तरह की मार है, वो बेरोजगारी की भी मार है, उनको तो पेट में ही खत्म कर रहे हैं। बाकी चीजें तो वो समाज में जो और लोग फेस करते हैं वो तो उसके पास पैदा होने के बाद आती है, उसको तो जिंदा होने का संकट है। जब फिर हम इन नाटकों को पूरे गांव में लेके गए, शहरों में लेके गए, वहाँ पर मतलब बिल्कुल ये लगा कि सच में हम ना इन लोगों की बात कह रहे हैं। और जब हम नाटक करते हुए और हमारे जो सामने जो दर्शक जितने भी बैठे हैं ना, हमने मतलब उनके चेहरे, जितनी भी औरतें बिल्कुल स्तर होके वो देख रही हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब क्योंकि उनकी खुद की कहानी कहता है ये नाटक। और पूरा समाज का एक आईना जो उनकी जो स्थिति है ना वो सारी उनके सामने ला के रखता है। और फिर नाटक के बाद जब हमारी पूरे जितने भी दर्शक हैं उनसे बातचीत होती थी, तब मतलब लड़कियां ये बात कहती थी, और ये कही गई है बहुत सारी जगहों पे बात कही गई कि जो बात हम नहीं कह सकी ना, वो आपने इस नाटक से कह दी हमारी बात। The playwright makes her entry on stage. सम्मान की रक्षा करेंगे, अगर सम्मान की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं अभी हम, तो ये ऐसी बातें हैं कि हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू। ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि जो बातें मैंने लिखी हैं कि लड़कियों का किस तरह से आश्वासन हुआ, कैसे वो अभिव्यक्ति के तौर पे बाहर आई, कैसे उन्होंने अभिव्यक्ति का एक साधन माना इस नाटक को, तो वो आपके सामने विजुअल्स में ये कुछ इंटरव्यूज़ थे इन लड़कियों के। ये लास्ट वाली एक लड़की थी जो जिसका नाम है अमनदीप। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से ग्रेजुएट है और अभी मुंबई में कुछ फिल्मों में काम कर रही है। मतलब इस तरह से लड़कियां छोटे छोटे जब उनकी उम्र थी तब वो नाटक में शामिल हुई और इन लोगों ने उनको नाटक में शामिल किया जैसे तैसे उनके घर वालों से बात करके। आज वो अपनी इस माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से और निकल के बाहर आई हैं और अलग अलग जगह पे अभी पहुंची हुई हैं। एक इसमें कमला एक लड़की है जिसका इंटरव्यू देखा था आप लोगों ने। वो असल में हरियाणा में माइग्रेंट है, वो बाहर से है, बिहार से है उनकी फैमिली जो वहाँ पे आके बसी। मज़दूरों के तौर पे वो लोग काम करते थे। वो खुद कमला मज़दूर थी, छोटी सी बच्ची। उसको नाटक में लाया गया और वो आज अजीम प्रेम जी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है, एक पूरे प्रोजेक्ट को खुद अकेली संभाल रही है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, लेकिन समय की थोड़ी कमी है
तो मैं कुछ आपको इंटरव्यूज दिखाना चाह रहा था। थैंक यू। So we have another 10-15 minutes for conversation among ourselves, और हमने बीच में बात, और ऑडियंस से भी अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, if you want to have any questions to ask them or any comment, we can also take that. But initially, just to initiate the conversation a little bit more, when you work from outside and try to form और विजुअलाइज, हाँ ठीक है, तो जब आप एक कम्युनिटी के अंदर से बात कर रहे हैं और जब आप बाहर से कम्युनिटी को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको हम कम्युनिटी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो ये प्रोसेस में किस तरह से आपने अप्रोच किया इस वे ऑफ एंगेजमेंट को, कि एंगेजमेंट का मेथड किस तरह से शुरू हुआ और उसको कैसे एक एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इनटू, तो उसको और फर्दर जैसे नेक्स्ट जनरेशन जो काम कर रहे हैं एक साथ, उनके अंदर में वो प्रोसेस और एंगेजमेंट कैसे एक्सपेंड हो रहा है और उसको कैसे, उसकी प्रोसेस आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं, इसके बारे में अगर बात करें। आई विल जस्ट ट्राई टू से इन इंग्लिश लिटिल बिट दैट like for Anuradha, who is coming from a different background and then engaging with a form which is more part of Dalit expression, or for Rohit or Ashok, that when you are engaging with the community, वो method of engagement का जो approach था, वो किस तरह से शुरू, how it started, and or how you formulated that method or framed that method for, or how you identify a community in that sense. I think that becomes a very important question कि community किसको मानेंगे, how to define a community in a sense, and how as a practitioner you would engage with that existence, their practice, their way of life. So how it happens, वो कैसे आप सोचते हैं इसके बारे में? So in that sense, the notion of collaboration or dialogues, or in the sense ये जो collective grow करते हैं, it's growing in a sense. So what is the form of collaboration also? उसके उस समय क्या आप दूसरे organization से भी सहायता लेते हैं, किस तरह से इसको एक formulation या framing करते हैं आप, कैसे एक process को build किया जाए, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप तक पहुंच रही है आवाज़? ओके, शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा पीछे से बात करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने एक बताया कि इंटरवेंशन का एक जो तरीका है, आप किसी को आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम ये काम अच्छा नहीं कर रहे, नहीं सुनेंगे। आप वो जो पहले से हो रही चीज़ों में कोई सार ढूंढते हो, कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढते हो जिस पर संवाद, जिस पर डायलॉग, वी कैन डायलॉग विद देम। सो ये ट्रेडिशनल चीज़ों से लेके देन मतलब एक एक्सप्लोरेशन रहा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाया जाए। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ कि इप्टा की संस्कृति जो है वो हमारी परंपरा रही है। मैं नाटक के हवाले से ही बात करूँगी क्योंकि मैं खुद भी नाटक से निकली हुई हूँ, और नाटक के बाद ही जो आप कह रहे हैं कि अगली जनरेशन कैसे लेके जाए, तो ये जो नाटक का हवाला एक दिया गया है उसमें मेरे पिताजी नाटक करने वालों में शामिल थे, फिर मैं उनकी बेटी नाटक कर रही हूँ, और इतनी चेतना हम लोगों में आई कि हम लोगों ने एक दूसरे से सहमति से विवाह किया, इंटरकास्ट मैरिज और तमाम खतरे उठाए। तो इस तरह के छोटे छोटे कदम हमारे सामने हैं। अभी ये जो बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ आपने देखी थी, वो बड़ी हो गई हैं, उनके बच्चे खुद नाटक में शामिल है। तो दिस इज द थिंग, बस हम वो इतना ही कर पाए। पूरा समाज, पूरा वो बदलना शायद अभी हम लोगों के अकीदे में नहीं है, मतलब हम भी थोड़े ही हैं, लेकिन जितना भी हमने चेतना हासिल की है, जहाँ पे भी हमें मौका मिल रहा है, हम इसी अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जननाट्य मंच जिस तरह से काम करता है, उसी की परंपरा हमारे पास है। जो पहला नाटक शायद अशोक मेंशन करना भूल गए, सफदर को आना था इसकी वर्कशॉप लेने, सफदर हाशमी को
लेकिन उनकी डेथ हो गई, मतलब उससे मर्डर हो गया, डेथ नहीं, मर्डर हो गया था उससे पहले ही। और इस तरह के खतरे भी हम लोगों ने झेले हैं। दूसरी बात ये कि जो मैम कह रही हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन किस तरह है, तो ये कोई एनजीओ सेक्टर वाला हिसाब किताब तो नहीं है। जाहिर है जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, जिसमें भी हमें वो कहते हैं ना कि एक सार नजर आता है, हम लोग गाँव में, हम लोग रेप सर्वाइवर्स के बीच में जाके काम करके आए। हम लोग छारा बस्ती जो गुजरात में है, जहाँ पे माना जाता है कि चोर है, वहाँ ज़्यादातर चोरों की बस्ती है, हम लोग वहाँ जाके काम करके आए। तो कोलैबोरेशन के लिए बस नेक इरादा और ज़रूरत की मतलब बात है। हम लोगों ने कभी कोई फंड्स नहीं जुटाए। हम लोग क्या करते हैं, नाटक करने के बाद चंदा करते हैं, वही जिस तरह से इप्टा और जिस तरह से जन्नाटे मंच करते हैं, वही संस्कृति, वही परंपरा, वही विरासत हम भी साथ में लेके चलते हैं। उसके अलावा वही बात है कि हम अलग अलग जगह पे ज़रूर है प्रोफेशनली। मैं टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग में हूँ, जैसे अशोक अपना एक काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं जो एनएसडी में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो हमें जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिलता है हम वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, इस तरह का संवाद कायम करते हैं। ये नहीं है कि कोई फंड दे के और या उस तरह से कोई कह दे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे 2 दिन की वर्कशॉप ले जाएं, 3 दिन में कोई नाटक तैयार करा दें, वैसा हम लोगों का नहीं हिसाब किताब है। Collaboration only as funding. Okay, sorry. I didn't mean it like that. Okay. I'm also referring to if Janam is functioning, Yeah. it can be a worker C2, it can be a agrarian workers union or the IDWA, Mahila Samiti, whatever. So there should be those kind of inner circle of support system which will give you access to that. Yeah. You know, so I mean, I know in Haryana, IDWA is quite strong. Yeah. So नहीं वो what she is trying to also point now out I'm getting her. कि एक्सेस का जो एक मसला होता है, come from the same background. Oh, that's really good. Yeah. Sorry, मैंने मिसअंडरस्टूड किया। और मतलब आप जब कोई स्पेस में जाते हैं और काम करने की सोचते हैं या एक कोलैबोरेशन बिल्टअप हो रहा है, तो उसमें जो एक्सेस की जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें लोकल इंस्टीट्यूशंस या जो पेडागोजिकल जो इंटरेक्शंस होता है, उस मेथड में आप लोग क्या काम करते हैं? वेदर यू गो फॉर अ वर्कशॉप या कुछ और डिफरेंट तरीका है जो आप जिसके थ्रू आप लोगों के साथ जुड़ने की जो मेथोडोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा एक जो इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जाहिर है कि हम लोगों को मजदूरों का साथ रखना होता है। और तब क्योंकि वही है कि जिस चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी मतलब ज़िंदगी से हम जुड़े हुए नहीं हैं। एडवा उस तरह से इस नाम से नहीं है, महिला समिति के नाम से काफ़ी सक्रिय है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जगमती सांगवान जो है लगातार महिला समिति इतने सालों से ऑनर किलिंग के खिलाफ काम कर रही है। और ये जो पहलवानों का अभी मतलब ये साक्षी मलिक और इनका उसमें हुआ, किसान आंदोलन में हुआ, तमाम इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं और कोलैबोरेशन के मतलब बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। हम लोगों ने किसान आंदोलनों में नाटक किए हैं, हम लोगों ने मनोज बबली का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये नाटक बना था इन्हें जीनो दो, जिस पर हमारे ऊपर भी बहुत हमले हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इस तरह के कोलैबोरेशन के साथ, बिना साथ के उस तरह से नहीं आगे बढ़ा जाएगा, जाहिर है जी। मैं कोलैबोरेशन पे ही बात करना चाहूँगा। ये सच बात है कि मतलब अकेले तो नहीं होता कोई भी काम, आप साथ में चलते हैं तो जन्म के साथ भी हम लगातार जुड़े रहते हैं। हम शफदर हाशमी की जो शहादत का दिन जो मनाया जाता है, मतलब दिल्ली में प्रोग्राम होता है, उसमें भी हम लोग जाते हैं, उसमें भी हम नाटक करते हैं, उन लोगों के साथ मिल के हम गाने गाते हैं। तो हाँ, हम लोग मिलते हैं उन लोगों से भी। मैं शुरू में ही बताया था कि मुझे नाच देखना मनाही था, तो मैं किसी तरह नाच देखता था, रात भर चुपके से जाता था, बिछावन पर तकिया लगा देता था कि कोई देखे कि सोया हुआ है। तो इसके बाद मैं जब मास्टर किया और एमफिल करने गया तो मैं सोचा क्या करूं, तो इसी तरह के विषय आए मेरे दिमाग में, कुछ सीनियर्स भी रहे। लेकिन पीएचडी करते करते, पीएचडी भी इसी नाच पर है,
तो उसमें से एक लोक गाथा उठाकर मैंने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, उसके एलिमेंट के साथ काम करने की। रेशमा चूहड़मल नाटक जो शांति निकेतन में मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर, लेकिन हिंदी और भोजपुरी में था, और वो उधर जो उनका है वो मैथिली है, मगही है, तो बहुत अच्छा तो नहीं रहा। मैंने एक लोगों को बुलाया भी कि देखने आइए, तो नहीं आ पाए किसी कारणवश। लेकिन मैं यहाँ पे हबीब तनवीर जी का जिक्र करना चाहूँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ग्लैमर की इस दुनिया में है कि मैं उनके बीच नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कब जाऊँ। अभी सोच रहा हूँ कि एक साल अगले साल जाऊँ, दूसरे साल जाऊँ, कि उन्हीं लोगों के साथ मैं कुछ काम करूँ। इसलिए कि हबीब तनवीर तो ऐसे ही फेल हुए थे, फिर उन लोगों के बीच रह के फिर काम किया, तो आज बहुत बड़ा काम किए। तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। धन्यवाद आपका। So what Rohit is talking about is that how to engage with the form and the relationship in his own practice. So he's trying to build up a language, a dialogue that he has developed in observing the Natuas and then putting it into his own practice. But he's also thinking how to go into the community and work together with the community as a performance project. So वो जो that whole observation and research that has come up from his own theater interest of documenting the Natuas, now he's thinking that how it can also, he can also work within the community and build up performances. Yes. Is there anybody, any other question that is you want to ask to the panel? No, so I think we can go for a conclusion in the sense, but what is interesting about your presentations about engaging with the community is also opening up the dialogue of what is the form of practice. Because it's not ending up in the form itself that it is a play or it is a kind of social comment. It is also the relationship that is being built up through certain conversations of making and through a certain kind of workshops and narratives or writing poetry or making work. So the form here is more of this growing relationship between the individual and the collective or the community that exists in a sense. So community engagement in that sense here is not about the production. It is not about making the product, but to find a common ground of coexisting and building up a relationship. And that itself, I think, is the new direction in which public engagement is evolving, that it is more about creating spaces for coming together, creating spaces for making and learning together, so that it doesn't end up in the power structure of representing the other or representing yourself, but it is about this process of working together in a certain way and build up a kind of a constantly growing community in that sense. I think we can conclude this session. Thank you, Rohit, Anuradha, and Ashok for coming here and sharing your practice. Thank you.